Students, in last video we have discussed different type of properties of 17 group elements. Out of them, number 1 atomic properties and physical properties we have discussed in that video. Today we will discuss about chemical properties of 17 group elements. Chemical properties of 17 group elements. Before starting the chemical properties of 17 group, first of all we should know about the anomalous behavior of chlorine. Now, why chlorine show different properties than other elements? So these may be due to small size, यानी हम कह सकते हैं क्लोरीन का साइज अपने ग्रुप में स्मॉल होता है. हम जानते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड एस्टेटिन, these are larger in size as compared to fluorine. Second case, high electronegativity. As we know and we have discussed in last video that fluorine is the smallest and higher electronegativity in the periodic table. So due to high electronegativity, it always has different properties than chlorine, bromine, iodine and astatine. Now third reason is non-availability of vacant d orbitals. Third, non-availability of vacant d orbitals. We have discussed in the electronic configuration that fluorine have not vacant d orbital, but all other elements have different vacant d orbitals. Low F bond dissociation enthalpy. You know F is small size, and when there is small size, electron repulsion of both will be larger. Now, higher value of electrode potential. We know that fluorine has highest electrode potential in their group. Also, MP and DP and electron gain enthalpy are lower than expected. यानी हम कह सकते हैं कि इसका boiling point फ्लोरीन का, melting point और electron gain enthalpy of fluorine always lesser than the other element, especially chlorine. So we can say these are the reasons by which we can explain that the fluorine has anomalous behavior from other element of 17 group. इसके अलावा अगर देखें तो एनोमलस बिहेवियर के कारण से फ्लोरीन का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, यानी बहुत ही तेज़ी से होता है. साथ ही साथ एक्सोथर्मिक होने के कारण से यह एक्सप्लोसिव नेचर हो जाता है. दूसरा अगर बात करें, अगर इस HF के यानी फ्लोरीन के हाइड्राइड्स को देखें, हाइड्राइड्स HF, HCl, HBr और HI, जब आप इनको ऑब्जर्व करेंगे, देट आर गैस बट इट इज लिक्विड. लिक्विड क्यों? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस इन HF. फ्लोरीन HF hydrogen bonding may be seen in the HF, so it is liquid form. Next point is oxidation. स्टेट. अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हम जानते हैं कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट्स इज NH2 NP5. It means there are 7 electrons in the outermost shell. So if there are 7 electrons in the outermost shell, so it may gain a single electron to complete their octet. तो हम कह सकते हैं इसमें ये जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए these elements always show -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी हम कह सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट इसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. लेकिन फ्लोरीन को छोड़ करके अदर एलिमेंट्स, वी कैन राइट हियर other elements like chlorine, bromine and iodine etc. also show
+1, +3, +5 and +7 oxidation state. Why chlorine, bromine, iodine and astatine show +1, +3, +5 and +7? It is due to the presence of vacant d orbital in all elements except chlorine. So we can say क्लोरीन में d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ये +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। देखते हैं किस प्रकार ये +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हम जानते हैं कि वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 17 group element is NS2 and NP5. Now we see NS, that there are 2 electrons, NP 5 electrons, and you know except chlorine all elements chlorine, bromine and iodine has n d orbitals. Now let's see, अगर इसको देखें तो चूंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, और ये 1 पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो 1 है वो अकाउंट फॉर द +1 एंड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हम ग्राउंड स्टेट में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन S में 2, P में 5, बट फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में देखिए जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन 1, this electron in first excited state, this electron will go here, then there are 1, 2 and 3 unpaired electrons, 3 unpaired electrons which is account for +3 oxidation state. Now second excitation state, in this electron, it means 1, 2, 3, 4, 5 and this electron goes 1 and 2. So see, we can say there are 5 unpaired electrons, so we can say it contains +5 oxidation state in this case. Like that, in third excitation state 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It means this electron will move from S to d orbital. So we can say 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. There are 7 electrons are unpaired. So we can say these elements chlorine, bromine or iodine may show +7 oxidation state in this third excited state. But in second excited state it always show +5. तो इस प्रकार क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन क्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्योंकि क्लोरीन में ये d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। जब ये d ऑर्बिटल्स नहीं होते तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ any d orbital in case of chlorine, it cannot extend their octet. It cannot extend their octet. So chlorine do not show other oxidation state like +1, +3, +5 and +7. Now another oxidation states which is shown by the chlorine and bromine, that are +4 and +6. Chlorides and oxides, chlorine and bromine also show +2 and +4 oxidation state. +2 and +4 oxidation state is shown by chloride and bromide in their chloride and oxides. Now chemical reactivity of 17 group elements. You know there are only a single electron required to complete their octet, so these are highly reactive elements. Highly reactive in nature. If we see the trend F, Cl, Br and I, अगर हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें अगर इनकी रिएक्टिविटी देखें तो फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। Why? Because स्मॉल साइज वही एबनॉर्मल बिहेवियर कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर ऊपर डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज लाइक दिस। नाउ these elements are strong oxidizing
एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या है? ऑक्सीडाइजिंग या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होते हैं। इवन फ्लोरीन F2 जो है वो X माइनस, दैट इज X इक्वल टू हो सकता है F2F माइनस प्लस X2, इट मीन्स यहाँ X इक्वल टू हो सकता है Cl माइनस Br माइनस एक्सेट्रा और I माइनस, ये हो सकते हैं। इसी प्रकार F2 Cl2 ब्रोमीन को Br माइनस और I माइनस को भी क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो हम इसको अगर इस तरीके से लिखें X माइनस, देन वी कैन राइट हियर 2Cl माइनस प्लस X2, यहाँ X इक्वल टू क्या आ जाएगा? Br माइनस एंड X माइनस इक्वल टू एंड I माइनस। तो हम ये कह सकते हैं इसी प्रकार Br2 इसको कर सकता है 2X माइनस, यहाँ X माइनस क्या हो जाएगा? 2Br माइनस प्लस X2 वेयर X माइनस इक्वल टू I माइनस। तो हम कह सकते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम और लेकिन ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑलवेज डिक्रीज डाउन द ग्रुप। रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दीज elements, relative oxidizing power is explained by the reaction of water, reaction with water. For example, F2 when react with H2O, then we can say 2F minus plus 2H plus plus O2। यानी हम कह सकते हैं क्लोरीन को जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, यानी ऑक्सीजन निकलता है। इसका मतलब है कि ये वाटर को क्या कर रहा है? ये खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक इसी प्रकार लेकिन ब्रोमीन और Cl2 इन दोनों की बात करें, इन दोनों की रिएक्शन अगर H2O से कराएं तो ये HOX और HX टाइप के हेलाइट, HOX हाइपो हेलस और HX हाइड्रो हेलस एसिड। तो हम ये कह सकते हैं X इक्वल टू क्या आ जाएगा? या तो Br या Cl, दोनों आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं क्लोरीन वाटर से रिएक्शन करके ऑक्सीजन बनाता है, जबकि ब्रोमीन और क्लोरीन वाटर। अब इसमें देखिए हमने यहाँ I माइनस क्यों लिया? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, या हम कह सकते हैं ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाली है। तो हम ये कह सकते हैं फ्लोरीन के केस में ये रिएक्शन क्या थी? रिवर्सिबल। फ्लोरीन के फॉरवर्ड रिएक्शन की तरह थी, लेकिन इसमें ये आयोडीन के साथ में जो रिएक्शन होती है वो क्लोरीन से जो रिएक्शन है उसके जस्ट अपोजिट हो रही है, यानी कि I2 प्लस H2O मिलकर के क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन इसमें जो यूज कर रहे हैं अपन, वो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? I यानी कि हम कह सकते हैं ऑक्सीजन से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला, इसलिए इसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर देखें तो फ्लोरीन F2 is greater than Cl2 is greater than Br2। नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, यानी कि हम कह सकते हैं X2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HX टाइप के हेलाइड्स बनाते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे XX। अब X इक्वल टू क्या हो सकता है? X इक्वल टू हो सकता है हमारे पास F Cl Br और I, यानी हेलोजन एटम्स। नाउ अगर हम इनको देखें, इसको अगर इस तरीके से HF HCl HBr and HI, such type of hydrogen halides is formed by the reaction with H2 and X2। तो हम ये कह सकते हैं X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम इसका देखेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखें, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर देखें, क्योंकि
ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ F, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, ये बड़ा होता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑलवेज डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नाउ एसिडिटी ऑफ दीज हैलाइड्स अगर देखें तो एसिडिटी, इसकी एसिडिटी HI की ज्यादा है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं इंक्रीज फ्रॉम HF टू HI। नाउ reducing power, next reducing power always increases, reducing power always increases because bond dissociation एंथैल्पी इसकी कम होती है, जिसके कारण से दूसरे को रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से दे देता है। तो हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग पावर ऑलवेज इंक्रीज फ्रॉम HF टू HI। एंड स्टेबिलिटी अगर बात करें तो हम देखते हैं स्टेबिलिटी HI, ये I बड़ा हो जाता है या लार्जर साइज होने के कारण से H और I के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, अर्थात बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके कारण से इनकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेज। सो यू कैन से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HF टू HI ऑलवेज डिक्रीजेज। तो हम इसको लिख सकते हैं डिक्रीजेज, इस केस में क्या लिख देंगे, HF HCl HBr एंड HI। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार आप आगे सभी का लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हेलोजन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। जनरली हम जानते हैं कोई भी नॉन मेटल एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसके ऑक्साइड बनाता है, ठीक उसी प्रकार हेलोजन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो फ्लोरीन केवल 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, FO2 केवल 2 प्रकार के FOF2 एंड O2F2 टाइप के ऑक्साइड बनाता है। अब क्लोरीन इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, इसलिए केवल 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। और ये दोनों ऑक्साइड क्लोरीनेटिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसी प्रकार अगर हम क्लोरीन को देखें, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को देखें, तो ये जितने भी ऑक्साइड बनाते हैं उन ऑक्साइड्स में ये +1 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जितने भी ऑक्साइड्स बनाएंगे उनमें इनकी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक हो सकती है। अब हम देखते हैं अलग अलग अगर देखें Cl, Br और I, इनके अगर हम ऑक्साइड देखें क्लोरीन, सो Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7 type oxide. Like as bromine, Br2O, BrO2, BrO3 and iodine I2O4, I2O5 and I2O7 टाइप के इस प्रकार इनके ऑक्साइड बनते हैं। इस Cl में जो देखें ClO2, ये ऑक्साइड ब्लीचिंग का काम करता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसको काम में लेते हैं। Br वाले हैं, Br के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो थोड़े अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। इसी प्रकार I जो कि सोल्यूबल, ये सारे सॉलिड हैं लेकिन सोल्यूबल नहीं होते हैं।